That is your goal is perfect. That we are connecting with that. But what kind of expectation you have you set some personal goal? It's a generalized actually. Yes, So have you set some kind to of be a part to be a part of a big company, big company means what is the definition of big company? like develop ourselves, such as Such as? TCS, to join TCS company or many more. Okay, 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 perfect. Thank you, sir. Okay, okay, thank you. After Achal, so have you worked over on the app development, or have you know about the app development? Anything, Achal? No, Achal. Achal, yes, Achal, yes. No, sir. Okay, okay, Little bit knowledge. okay, okay, no problem. Then Gauri, Gauri Gawande. Yes, sir. Achal, your branch is IT or CSE? CSE, sir. Okay. Gauri Gawande, introduce Yes, yourself. sir. Introduce yourself. Hello, sir. I am Gauri Gawande from second year CSC branch. After graduation, I want to work in well-known company Mm-hmm. as a successful software engineer. Okay, okay. So, do you have any knowledge about the app development, No, sir. software I am development? just beginner. Okay, okay, okay. Your branch is Computer science, computer science. CSC. Huh. Okay, okay. Thank you. Then Gitanjali. Yes, sir. My name is Gitanjali Deepak Beswar. I'm from a computer science background, Mm-hmm. and I want to be the part of a software development company Mm-hmm. at the end of my graduation. Okay. So, have you set any goal that I want to be the part of this company or that company or something, or maybe if you have? Well-known company like TCS, Wipro. Okay, okay, okay. Then thank you. Then Piyush. So, hello, sir. It's Piyush. I want to work. Actually, I have interest apart in marketing apart from engineering. Mm-hmm. So, and I'm interested in data science. So, I want to be make projects regarding to marketing because you all know India is a growing economy. So, Yes. I want to make predictions and analysis. So, I want to join Accenture. Accenture is my first priority. Then. Uh, Basically, I don't want to join any Indian company, Mm-hmm. but I क्यों I भाई? will join. क्यों क्यों इतना गुस्सा है इंडिया से? यूक्रेन जाने का इरादा है क्या? Uh, हाँ? नहीं सर, इंडियन कंपनी यूरो इंडियन कंपनी काम नहीं करती क्या? पोटेंशियल ऐसा दिखता नहीं सर. ऐसे यूरोपियन कंपनी जो है अच्छा, 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 यूरोपियन कंपनीज में पोटेंशियल होता है, से, ओके। सेकंड तो प्रायोरिटी है इसलिए मेरी. इसीलिए वो सीईओ इंडियन को बनाते हैं ना। पोटेंशियल उनकी कंपनी में होता है, इसलिए सीईओ इंडियंस को बनाते हैं। सही जा रहे हो नहीं वैसे। ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि ऐसा हो सकता नहीं हो सकता पता नहीं. ओके, 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 नो मुझे प्रॉब्लम। मार्केट. हाँ तो इससे पहले मैंने कुछ ट्राई करा है एक्चुअली वेब के रिगार्डिंग. मेरा ओके, प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है पर अ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अब तक हुआ नहीं है. ओके, ओके। मार्केटिंग तो रिलेटेड। इट इज ऑन गोइंग. मार्केटिंग रिलेटेड। यस. ओके, ओके, योर ब्रांच इज? आईटी. ओके, ओके, गुड, गुड, गुड। देन थैंक यू पीयूष। देन प्रसाद। Hello everyone, myself Prasad Nimkar. I am a second year CSE student Mm-hmm. and my field of interest is mostly AI, ML and cybersecurity. Mm-hmm. Here I gather to learn about Android development and I am also try to get job, mostly try to get job in service based company. Okay, okay, good, good, good. Which branch you have?
belong to? CSC. CSC. Do you have any YouTube channel? No, sir. Okay, okay. Well, you have started Hello Friends. That seems to be some YouTuber. Okay, No, 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 sir. okay, okay. So I thought you have a YouTube channel and you just have a vlog also, blog and vlog. Okay, no worries. Mm, Okay, not, sir. okay, okay. Thank you, Prasad. No problem. Sanjana. Yes, sir. My name is Sanjana Bhaiswar. I'm from second year CSC branch. I want to come. I have completed two internship up to now Mm-hmm. for campus ambassador, and now it is going for cyber security domain Mm-hmm. in this month only. Mm-hmm. Now, after graduate, I want to complete my MS also from Triple IT Bangalore, Mm-hmm. and I have to get job in Amazon company. Triple IT Bangalore. Okay. MS. I Yes, sir. have you heard about the IS? No, what is that? Uh, ISC Bangalore. Yes, sir. Okay. So triple IT is the only one, or ISC Bangalore you can means you can prefer, because triple IT comes after the NIT, Yes, sir. and before the NIT there is a IIT, and before the IIT there is I IISC, see. Yes, sir. and after means you have just said the triple IT. Okay, that's why I'm asking. Bangalore, if you are willing to go to the Bangalore, so you can try for IISC first, and Yes, let it be what is the score of your gate score or what the exam you crack. That will decide whether you get the admission in the triple IT or NIT or IIT or IISC. But you should target for the IISC first, because sir. जितना ज़्यादा ऊंचा सोचोगे एटलीस्ट वो नहीं तो उसके नीचे का तो मिलेगा, मीन्स Yes, लाइक हाँ दैट. हाँ, बराबर. लाइक दैट. अगर हम एक बेसिक लेवल पे अगर टारगेट करते हैं तो मिलेगा ऐसा नहीं है, मिल भी जाएगा. बट वहां पे जाने के बाद ऐसा रिग्रेट ना आ जाए कि यार और जब अगर थोड़ा ज्यादा कर लेते थे तो उसके ऊपर का मिल जाता था, और अगर कर लेते थे उसके ऊपर का, ऐसा समथिंग लाइक दैट. ओके, एनीवेज, Yes. नो प्रॉब्लम. सो Thank you, sir. इट्स गुड दैट यू वांट टू डू द MS. Okay, then yes, Sarvesh. Hello, sir. I'm Sarvesh Bubde. My field of interest is cybersecurity. And after graduation, I want to work as a software developer in any of the well-known company. And side by side, I also want to do the Mm-hmm. PG. MBA from any of the institute. Okay, depends on the CET score and CAT MAT वगैरह. Yes, sir. Okay, okay, Yes, sir. good, good. You are from IT department, good. Okay, Yes, sir. My department is IT. yeah, good, good. Then okay, thank you, Sarvesh. Vaishnavi. Hello, sir. Mm-hmm. Good evening, sir. My Mm-hmm. name is Vaishnavi Vinotra Babukar. Mm-hmm. I am from second year IT department. Mm-hmm. I, and my goal is to place in well-known company, well-known IT company. Vaishnavi, I guess your mic is continuously moving, so there is a now there is a noise. Now, my voice is clear? Now it is clear. Yes, sir. So what you I have had, said about the after final year? after final year, I place in well-known IT companies. Okay, okay, okay. Then anything else? I want to become a software engineer. Okay, you want to become software engineer. Okay, okay. Then thank you, Vaishnavi. Then Yash. Good afternoon, sir, and hello everyone. I am Yash from IT department, and my goal is to simply earn a lot of money by doing something interesting and fascinating. That's it. Nothing more special. Just to enjoy my life and
while making money. तो फिर इंजीनियरिंग छोड़ दो, बहुत एंजॉय करोगे भाई। नहीं सर, इंजीनियरिंग पढ़ाई को भी एंजॉय कर सकते हैं ना, अच्छा, इतना ओके कुछ सीखने के लिए है। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, दैट्स इट गुड सर। अप्रोच, गुड अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच। थैंक यू, यस। थैंक यू सर। Okay, thank you, thank you. Okay. So that is about the introduction and your choices. So most probably one or two students are there that they want to pursue the higher education in some of the domains. Okay, rest of the other want to be placed after a final year. So the first thing is, for getting a placement we require a good aptitude, general aptitude, then a vocabulary, then we have a mathematics, some mathematics related terminologies that we should have to be make good enough. Then after getting a crack aptitude test, aptitude level, you may have a technical skill test or technical programming test. Okay, so over there you just have to go with the C language, C++, either Java or .NET, or nowadays Python and PHP. These are also there. Okay, so Python is actually there, not exactly the PHP. PHP is some sort of we can say backend development. Then these things are required in the second round, and after the third round you should require that may be the non-technical HR round, or group discussion round, or somehow direct interview will be also there, depend on the company to company. Okay, in that case you can definitely show your confidence, you can definitely show your work. Yeah, even though your resume is also talking about how many internships you have done, how many projects that you have done. Okay, how many sponsored projects that you have done. Sponsored project means that some of the organizations are there, manufacturing industries are there, over there you have develop a software and give them, and that software is they are working. So that is what sponsored project. Freelancing, that we can say, everyone knows about the freelancing, that you made some software and that you will sell it. Okay, like that. So that will be the evaluated in the personal interview, and then you will get the selected. Okay, some of the companies follow this kind of a structure. Now what is the importance of creating this particular group? The importance is that we have to take some ideas, okay, from different persons. Everyone you can put the ideas. Okay, what kind of application that we can made, हमने किस प्रकार का application बनाना चाहिए, so that it will be great to learn also, because हमारा ग्रुप जो है वो 14 का वगैरह है, ठीक है। वैसे 20 मेंबर्स दैट वी आर आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें 3 मेंबर ऐसे हैं कि जो उसमें पार्टिसिपेट में भी किए होंगे, नहीं किए होंगे, आई डोंट नो, बट फ्रेशली 20 मेंबर्स आर देयर। ओके, out of that 2 or 3 are repeated, means most probably 17 fresh students are there, but here we are having only 13 fresh students, and 3 are that way I already known. Okay, Saloni, Akshad, and Rushalya. Okay, so the case is, when we have to develop anything, either a software, either any application, or any manufacturing industry, if you consider, if you want to develop, we require the raw data. That it means raw information. In our case, if it is an application or if it is a software, we require the raw information, and that raw information and their processing part is very important. On the basis of that, उसके ऊपर ही हमारा आगे का जो जर्नी रहता है ऐप डेवलपमेंट का या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, और उसको आप किस प्रकार से, उसको किस टाइप से उसको हैंडल कर रहे हैं, हाउ यू कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गिव द फाइनल आउटपुट। जो भी आप फाइनल आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो फाइनल आउटपुट के लिए वो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रहती हैं। दैट इज द फर्स्ट केस। अनदर केस इज, we all are total 15. Okay, I'm excluding myself, so total 15. So 15 suggestion would be there. Okay, so we will just uh, get that suggestions and we will do the voting. Okay, how many votes are going to that particular module or particular topic, that we will start thinking on it, because development is not a just like to go to the Google
and copy the code and paste into the some of the editor, and then run the program, and you will get the output, and that is our project. Okay, many times some of the companies that they have given a problem statement to you, and they just say that you have this editor, try to develop it. Okay, in that case you don't have a access of a Google. Okay, it is a restricted. उन सिस्टम पे गूगल का एक्सेस आपको मिलेगा ही नहीं, गूगल को ब्लॉक कर देंगे वो। ठीक है, और भी कुछ होंगे सर्च इंजिन, तो उनको भी ब्लॉक कर देंगे वो। ठीक है, तो उस केस में हमको डिफिकल्ट जाएगा कि अगर ये चीज़ करनी है तो कैसे करना। ठीक है, अब सभी का बोलना रहता है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, दैट इज ओके, बट एवरीवन ईच एंड एवरीवन वांट टू बी अ डेवलपर। ओके, सबको अगर डेवलपमेंट में ही जाना है, ठीक है, डेफिनेटली कंपटीशन इज टू मच। अगर सभी डेवलपमेंट में जाएंगे और सभी बोलेंगे मुझे डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप ही करना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ डेवलपमेंट का ही पार्ट नहीं होता, उसके अलावा लगभग 7 से 8 ऐसे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जिसमें बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है, इवन बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज वन ऑफ देम, cyber security with database, ethical hacking is there, then database management system DBMS is there, then we are having network system network engineer, cyber security engineer, then networking related, then we are having a testing. There are several jobs related with the testing. Several softwares are used for testing, automation testing, manual testing is also there. And under the development we have a variety of tools, and we require, being as an industry person, it is required that you may have a knowledge of a latest tools. Even though the latest is tools that you know, along with that you have a basic knowledge of OOPS concept. OOPS means object oriented programming. You might be heard in your academic right now. Polymorphism, encapsulation, data hiding. Have you heard? Inheritance. Yes, sir. Yes. This basic concept that you should know, basic concept of C language, OOPS concept, or basics of Java, that you should know. And again, you require a latest technology, and that you should have a hands-on. It's not like that the theoretical part you know. Hands-on. Hands-on means you have already work on it, and that's why internship is compulsory. So Sanjana may explore that particular part because she is having a experience of a one internship, and she is pursuing another internship. Okay. So I just require 1 minute from you, Sanjana, that you just tell me your experience about your first internship. What you have did in that particular internship, what kind of things that you learn from your first internship. Sir, first of all, my internship is about campus ambassador only, not about any particular Technical. development. Okay, okay, okay. So again, what you have done in under that management. In that, I have make some innovative posters Mm-hmm. for publishing that company Okay, and training only. okay. Now currently you are enrolled, or you have started the internship of related to cybersecurity. Sir, enrolled only now. Okay, enrolled, It and starts from you may have 15. experience. It is AICTE means approved or something like that. No, sir, it is about HME grade. Okay, 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 no problem. So basically, internships are required in order to get how we have to work in the IT domain or IT industry. Okay, so basically, whenever we talk about the industry, it seems to be a IT industry. It is never ever computer industry, because the computer is what exactly? It is just a tool which can be used to develop the softwares, and making a softwares, maintaining the softwares, and developing the softwares, and deploying the softwares. Okay, executing the queries. For that we require the computer only. Otherwise, all our softwares that are developed under the domain of IT, that is information technology, the technology which deals with the information day to day. That's why we call as a one
आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि भाई आप बिलोंग करते हो कंप्यूटर साइंस से एंड आपको जॉब चाहिए आईटी इंडस्ट्री में, वाई वाई डू यू डोंट हैव टू अप्लाई इन अ कंप्यूटर इंडस्ट्री? सो कंप्यूटर इंडस्ट्री इज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, दैट्स इट. But it is not solely depend with the computer engineers. It is a part of electronics engineers, because there are some semiconductor, transistor, ICs, microprocessor, microcontrollers, that all are the parts of a electronics engineer, right? So basic thing is we have to discuss what kind of application that we can choose, okay, in order to develop it, okay, and what kind of the role that we have to play under that particular group, okay. We can make a group of two people, because if one is not working due to the some reason, दो में से एक अगर कोई काम नहीं कर रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ वन रीज़न, तो दूसरे ने करने को होना, ठीक है, वो कर रहा होगा तो ही उनका यूनिट जो है वो वेल परफॉर्म करेगा. बिकॉज यू मे हैव अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आपने ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, क्लासेस देखे होंगे C++ या फिर जावा में, ठीक है. वाई देर इज़ अ नीड ऑफ अ क्लास, वाई देर इज़ अ नीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ओके. मॉड्यूलरिटी क्या होती है जो सी में नहीं होती है, जो जावा में होती है या फिर C++ में होते हैं? We can divide the particular software, divide the application into the variety of modules, okay, and that we will assign to the individual, means two persons, okay. So 7 or 6 or 5 modules will be there, that will be assigned, okay. So first thing is which kind of softwares that we can make, that comes in your mind, which type of a software that we, or not the software, application that we want to make, okay. So just give the quickly comments in the chat box कि आपको क्या लगता है कि किस टाइप के सॉफ्ट एप्लीकेशंस हमने बनाने चाहिए, सो दैट इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर कंसेप्ट्स ऑफ ऐप डेवलपमेंट, एंड इट कैन बी सेल्ड ऑल्सो. हम उसको सेल भी कर सके. बीइंग अ part of that, you will definitely get the remuneration or some financial support from that if it is sold, okay. So ये भी मिलना चाहिए हमको, क्योंकि ऐप में आप ऐड दिखा सकते हो और ऐड अगर चल रही है उसमें, सो डेफिनेटली वी विल गेट द मनी. किसी का यूट्यूब चैनल है इन 16 में से? डू यू हैव एनीवन यूट्यूब चैनल? डू यू नो अबाउट दैट, हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम द यूट्यूब? एनीवन? Yes, sir. We use AdSense, Google AdSense. Yes, if you have ads in your YouTube channel, then definitely monetization after 1000 subscriber, and some of the time limits are also there, कुछ parameters है, then monetization means पैसे आपको आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. Similarly, if we develop the app, पोस्ट द ऐप इनटू द गूगल प्ले, आपने उसको गूगल प्ले पे डाल दिया, और उसमें भी अगर एड्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, और उसके लाइक्स मीन्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो सकती है कलेक्टिवली. इट्स नॉट ए इंडिविजुअल, ठीक है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. आई एम ऑलवेज try to focus on a group activity. Why? Because we have to work into the industry in a group, not as an individual, ठीक है. Your boss may ask you that to work on this particular task, okay, but definitely you have to be stick with your group, okay, and that practice should be there, okay. इवन दो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो रहेगा आपका, उसमें भी आपको ग्रुप ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है. फाइनल ईयर में ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, and with the help of that particular group we have to submit the particular project, okay. So you can just quickly put your ideas that ये सर ये ऐप बनाना चाहिए, हमने ये कंसेप्ट पे ऐप बनाना चाहिए, कि इसके लिए ऐप बनाना चाहिए, ये चीज़ बनानी चाहिए, ठीक है. So that I can float the one Google form after this meeting, and then we will get a voting. So your suggestions are required in the chat box. Understood what I am asking? कोई भी एक Yes, टॉपिक, sir. कोई भी एक टॉपिक दीजिए. ऐसा नहीं कि बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास तो मैं 6-7 टॉपिक दे दूँ, नो नीड. उसमें से एक प्रायोरिटाइज कीजिए, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको लगती है वो टॉपिक आप दीजिए. जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज के लिए एक अटेंडेंस सिस्टम बनानी चाहिए, ऐप बेस, कि बच्चे वहाँ से ऐप से फिर अटेंडेंस दे देते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है. क्योंकि उसमें हर फैकल्टी का 5 मिनट रोज जाता है हर लेक्चर में, तो ऐसे 5 मिनट अगर कैलकुलेट करते जाएंगे तो पूरे साल भर में कितने इन्वेस्ट हो जाते हैं. हम फर्स्ट ईयर में लगभग 70 लेक्चर्स लेते हैं,
सो 70 इंटू 5, 350, 35-40 मिनट पूरे चले जाते हैं ना। एक आवर आधा आवर, हाफ आवर कंसिडर कर लीजिए, एक साल में एक फैकल्टी का जाता है। ऐसे कितने सारे फैकल्टी थे, सो अटेंडेंस में इतना समय चला जाता है। तो वो ऐप के थ्रू होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा सजेशन है, ठीक है, रैंडम सजेशन है। वैसे आपकी तरफ से कोई सजेशन है क्या, वो आप चैट बॉक्स में बताइए। Sir, suggestions on which topic? जनरल, जैसे अभी अक्षत ने बताया पीडीएफ मेकिंग ऐप, दैट इज स्कैनर ऐप। ओके, ये एक ऐप बना सकते हैं हम। जैसे आपको अभी ऑनलाइन जब भी आप कोई टेस्ट वगैरह देते हो, एग्जाम देते हो, तो पेन एंड पेपर के साथ लिखना पड़ता है और उसके फोटोज निकालने पड़ते हैं। कुछ ऐप्स अवेलेबल है, बट हम भी हमारा बना सकते हैं। बाद में डे टू डे यूज़ कॉलेज ऐप, जैसे प्रसाद ने बोला, डे टू डे यूज़ में हम क्या हो सकता है कि कुछ नोटिसेस है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो आपके ऐप में आने चाहिए और उसका एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। जनरली व्हाट्सएप पे आता है, बट व्हाट्सएप पे हाई प्रायोरिटी मैसेज, लो प्रायोरिटी मैसेज ऐसा नहीं होता है। उसमें सब मैसेज एक साथ ही होते हैं। अगर आपने गलती से नहीं देखा, उसको स्किप हो गया वो बहुत से मैसेज आने के बाद, तो आपकी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस चली जाती है। तो एक होना चाहिए कि हाई, लो, लोएस्ट, ऐसा कुछ तो भी प्रायोरिटी, हाई, मीडियम, लोएस्ट ऐसा। तो प्रसाद ने, प्रसाद कहाँ गया, हाँ, प्रसाद ने जो सजेशन दिया वो भी एक अच्छा सजेशन है। डे टू डे यूज़ कॉलेज ऐप, उसमें चीज़ें होनी चाहिए। बाद में एक अटेंडेंस ऐप इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल सर। ओके, अटेंडेंस के लिए भी एक ऐप होना चाहिए, एक्चुअली इट इज़ रिक्वायर्ड। और वे वो ऐप आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो आगे जाके, और इसका आप फाइनल में प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस पर ईयर, प्रणोति सेड करेक्ट। प्रणोति, यू हैव जॉइन राइट नाउ? No, sir. 15 minutes ago. Okay, okay. You haven't introduced yourself, na? That's why I'm asking. Yeah, so sorry for that. No, not sorry. But I just said that मैंने जब सभी का इंट्रोडक्शन लिया तो मैंने आपका नाम स्किप कर दिया क्या, ऐसा मुझे लगा। ओके, नो नहीं प्रॉब्लम। नहीं, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। ओके, ओके। So question paper for practice. So that is also good because if you join the first year, अभी आप ऑफलाइन में ज्वाइन हुए थे, ऑनलाइन में ज्वाइन हुए थे, इसकी वजह से चलो ठीक है ऑनलाइन एग्जाम होगी। बट आपके बाद जो आएंगे वो तो ऑफलाइन में ज्वाइन होंगे ना, जिनकी अभी 12th की एग्जाम चालू है, वो फर्स्ट ईयर में आएंगे। उनके पास क्या रेफरेंस रहेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से तो सभी एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑल ऑफ द सडन उनको बोला जाएगा कि आपकी एग्जाम ऑफलाइन है। तो क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड कुछ तो पैटर्न होना चाहिए पता उनको, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप से आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं। ये भी एक हम मैंने सोच सकते हैं इसके रिलेटेड। और ये चीज़ जो है, ये प्रसाद ने जो बोला है उसके साथ क्लब भी कर सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस का भी हम डे टू डे यूज़ कॉलेज ऐप जो प्रसाद ने बोला है, इसके साथ क्लब कर सकते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन रख सकती है, या फिर इसके मॉड्यूल्स हम एक ही ऐप में बना सकते हैं। मीन्स होगा बहुत ज़्यादा बड़ा वो ऐप, ठीक है, बट स्टिल वी कैन थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। Then Salonis just suggested student and mentors individual communication app, ठीक है। That can be also because we have a teacher guardian scheme। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर गार्डियन स्कीम में बच्चे फैकल्टी से, फैकल्टी बच्चों के साथ नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस इफ देर इज अ चैट बेस्ड ऐप, ओके, उसमें वो सभी बच्चे एनरोल रहेंगे और दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। ये भी एक हो सकता है चैटिंग, ठीक है। देन यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग ऐप, पीयूष। सो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू आर इन माइंड विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पीयूष? यानी कैसा है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे मैंने समझने के लिए। सर आज के बच्चे नहीं तो कोई भी ऐसे मोबाइल पे लगा लगा रहता है तो उसका एडिक्ट हो जाता है। उसको वार्निंग शो करना और उसके बारे में मतलब उसका कितना काम है मोबाइल यूज करने का, मीटिंग्स मतलब ऐसा नोटिफिकेशंस आते हैं ना, तो उसके मतलब यूजर के लिए जितना अच्छा होगा उसके बारे रिलेटेड ऐप बनाने का ओके, ओके, करेक्ट, वो करेक्ट। ज्यादा। तो कोई कोई सोशल मीडिया पे बहुत ये हो जाता है तो उसको वार्निंग करनी चाहिए, यू हैव मतलब
30 मिनट हो गए, अब आप छोड़ सकते हैं, ऐसा ऐसा इसके नहीं, रिलेटेड। something just alert related. हाँ, यस यस। Yes, it's one of the good, because some of the television sets or TVs, smart TVs, that having such a kind of a things. You are watching TV since 30 minutes, 1 hour वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ alerts आते हैं उस टीवी में भी, तो उस हिसाब से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अलर्ट कैसे शो करना है, कैसे कैसे लेने हैं, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा पहले, डेटा सेट उसका, दैट इज ओके। देन एंड्रॉयड बेस्ड कॉलेज चैटिंग ऐप। Okay, so Saloni or Vishali and then Yash. Okay, you are on the same track. Saloni just said that communication should be there in between the two ends. First is student, another is mentor. Then Android based, where is Drishil? Android based college chatting app. So in that case, a separate room will be there for a chatting. ठीक है, सो एक टीचर गार्डियन के लिए रहेगा, एक क्लास टीचर के लिए रह सकता है, एक सब्जेक्ट फैकल्टी के लिए रह सकता है, और एक जनरलाइज स्टूडेंट के लिए भी रह सकता है, ऐसा भी आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, देन गौरी सेड द अटेंडेंस ऐप इज अ ग्रेट आइडिया, राइट, परफेक्ट। स्टूडेंट डिफिकल्टी ऐप, Ankita said student difficulty, it means difficulty forum should be there. Okay, if you have some difficulty, you can post over there, and that difficulty, respective difficulty will be given to the respective in charge. Okay, जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट डीन अफेयर है, बाद में टीचर गार्डियंस है, बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, देन वुमेन्स ग्रीवेंस सेल भी है हमारे यहाँ पे। में भी ऐसा हो सकता है किसी लड़की को कोई डिफिकल्टी बतानी है बट वो नहीं बता पा सकती है, ठीक है, इट हैपन्स, सो शी कैन easily go with this particular app. Then any software connected to the cameras of college which can automatically count the number of students and feed into the system. Okay, means okay, we have to put that camera in front of the door, or targeting to the door, as the survey said, targeting to the door, and it will count, जैसे ये चीज़ें होती है जनरली, जो ये चाइना मुझे करता है ना, चाइना मॉनिटरिंग करता है लोग कितने हैं, कैसे है, क्या है, फेस डिटेक्शन सिस्टम वगैरह ये, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ भी कॉलेज में भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, अभी लेटेस्टली इम्प्लीमेंट की हुई है। हमारी जो अटेंडेंस होती है, फैकल्टी की अटेंडेंस जो होती है, वो बायोमेट्रिक होती थी पहले, थम थम देते थे हम, अभी फेस डिटेक्शन से अटेंडेंस हो रही है, ठीक है, हमारे कॉलेज में। हाँ, जो रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पे अगर आप गए तो उसके एग्जैक्ट बाजू में जो वॉल है वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन में अगर हम फेस दिखाते हैं तो हमारी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइप पे हम कुछ सोच सकते हैं। ग्रेट, देन अटेंडेंस ऐप इज गुड, ओके संजना। देन सलोनी, इट ऑल्सो कंटेन्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। सलोनी ऑलरेडी सेड अबाउट द student and mentor, okay, performance of the student, okay, so these are the several suggestions. Apart from that, what I am just collecting from that suggestion, जो भी किसी का कुछ बचा है देने के लिए सजेशन, एनीवन? स्टूडेंट फीडबैक ऐप, भाई फीडबैक तो पहले से ही देते हो आप, और फिर कितना ऐप बनाओगे अक्षत भाई? पहले तो फीडबैक रहता है आपका, प्री सेमिस्टर फीडबैक, पोस्ट सेमिस्टर फीडबैक रहता है आपका। तो ये फैकल्टी फीडबैक देगी स्टूडेंट के बारे में, कि स्टूडेंट फैकल्टी के बारे में फीडबैक देंगे, कि स्टूडेंट कॉलेज के बारे में फीडबैक देंगे? ये बताइए अक्षर, कौन किसका फीडबैक लेने वाला है और देने वाला है? अक्षर, एम आई ऑडिबल? ओके, पार्थ, पार्थ अभी ज्वाइन हुए क्या आप? अटेंडेंस मैसेज सेंड ऑन देयर हेलो। मोबाइल, हाँ यस, हेलो सर। हाँ अभी जॉईन हुए? नाही सर, कब से हो? तुम्ही नाव घेतलं तेव्हा कुठे होते तुम्ही? सर तेव्हा नव्हतं सर, त्याच्यानंतर जॉईन झालो. अच्छा अच्छा, ठीक, तेच म्हणून राहिलो मी, नाव घ्यायचं विसरलो की काय, ठीक है। एनीवेज, सो ये पूरा जो डिस्कशन मुझे दिख रहा है, ये अराउंड एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट ऐप अगर ये बोलते हैं,
जिसमें क्या रहेगा, बच्चों की अटेंडेंस, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रहेगी, ठीक है, वो एक पार्ट रहेगा उसका। उसके बाद हम ये एक सोच सकते हैं कि उसी के साथ कुछ और फीचर्स हम उसमें ऐड करेंगे, कि जैसे कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, स्टूडेंट टू टीचर गाइडेंस कम्युनिकेशन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, देन स्टूडेंट टू क्लास टीचर कम्युनिकेशन, एंड बस 2 या 3 ही फील्ड रख सकते हैं हम, ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। उसके बाद हम ये रख सकते हैं, अटेंडेंस का भी आ जाएगा उसमें, बिहेवियर ऑफ ट्रैकिंग ऐप, ओके। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये एक अलग टॉपिक है। सर हाँ, यस पार्थ। सर आपण असं पण ठेवू शकतो ना, की जर अटेंडन्स म्हणजे प्रेझेंट असेल मुलगा, तर डायरेक्ट आहे ना त्यांच्या पॅरेंट्सला कधी-कधी मेसेज जाईल, की जे हॉस्टेलवर वगैरे राहत आहे, की तुमचा मुलगा प्रेझेंट आहे म्हणून कॉलेजमध्ये. याला पहा रे बा, हा असं म्हणते आता, बाकीची वाट लावते हा. नाही, चांगलं सजेशन आहे, की पॅरेंट्सला हां. आपण एक इन्फॉर्म करू शकतो. वी कॅन इन्फॉर्म टू द पॅरेंट्स. ओके, दॅट इज ऑल्सो गुड सजेशन. बट Sir, हां, येस. sir, we can also make an app that which can alert the student if his attendance is below 75%. Then the notification can go on his मोबाईल uh, फोन. smartphone, mobile phone, येस, which येस. can alert him that he can improve his attendance. येस, येस. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. सो सर तर हे येस. सेमच ॲप्लिकेशनमध्ये येईल ना पूर्ण? Now, what exactly? Attendance is completely autonomous. यहाँ पे फैकल्टी का कोई इंटरवेंशन नहीं रहना चाहिए, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एक एक रहता है कि सर ने अटेंडेंस ही नहीं लगाई होंगी हमारी, इसकी वजह से कम होगी, मैडम ने अटेंडेंस ही नहीं ली होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा एक रहता है, ठीक है। बट अगर आप कोई सिस्टम बना के देते हो, अगर वो सिस्टम आपकी अटेंडेंस ले रही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत आने से रहेगी, ठीक है। फेस डिटेक्शन के लिए तो हम फिलहाल नहीं जा सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई एंड लेवल पे चला जाएगा। उसके लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे आईओटी बेस, तो वो थोड़े कॉस्टली रहेंगे, तो वो हम नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि भाई एक अटेंडेंस आनी चाहिए, जैसे फैकल्टी एंटर हो गई, ठीक है, उसके बाद उनके पास भी वो ऐप होना चाहिए। उन्होंने जस्ट वो ऐप में से जो अटेंडेंस वाली बटन है, वो जो भी टैब है, वो ऑन कर देनी चाहिए। विद इन 5 मिनट्स सबने अटेंडेंस दे देना चाहिए, 5 मिनट्स, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स यू आर शोइंग द लेट, ठीक है, लेट मार्क वो शो होगा, जैसे यहाँ पे होता है ना क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में, लाइक दैट। तो ये अटेंडेंस आपके पास मिल गई। अब ये अटेंडेंस मिलने के बाद मंथली जब अटेंडेंस हो जाएगी, यानी 1 तारीख से लेकर तो 30 तारीख तक की अटेंडेंस हो जाएगी, तो अगले महीने की 1 तारीख या 2 तारीख को सिस्टम ने खुद से ये प्रेडिक्ट करके, कि कैलकुलेट करके, प्रेडिक्ट नहीं, कैलकुलेट करके बिलो 75 जो भी है स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको एसएमएस भेज देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहले महीने का। दूसरे महीने में कर सकते हैं आप कि भाई स्टूडेंट को तो भेजा, पेरेंट्स को भेजना है या नहीं भेजना, ठीक है, वो भी आप चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स के मोबाइल नंबर अगर ले लिए तो उनको, तो अभी ये ऐप थ्रू, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐप थ्रू एसएमएस कैसे जाता है, एसएमएस सर्विसेज हम कैसे अनेबल कर सकते हैं, दैट इज अ टारगेट। ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि 2011 में जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जब मैं इंजीनियरिंग में था, आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ अमरावती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उस टाइम पे अमरावती म्यूनसिपल की खुद की वेबसाइट ही नहीं थी। सूरत की थी, अहमदाबाद की थी, बेंगलोर की थी, दिल्ली की थी, नोएडा की थी, इवन बीएमसी इज ऑल्सो हैविंग अ वेबसाइट, नागपुर का भी था शायद थोड़ा बहुत, ठीक है। बट अमरावती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खुद की वेबसाइट ही नहीं थी, ठीक है। और उस टाइम के हमको पता चला था 2010 के आखिरी आखिरी में, 2011 में हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया था, तो 2010 में हमें पता चला था कि आधार कार्ड वाली कोई तो भी सिस्टम, आधार वाला सिस्टम कुछ तो भी आने वाला है। उसमें बायोमेट्रिक भी लेंगे, बाद में रेटिना के रिलेटेड, आई के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लेंगे, फेशियल इंफॉर्मेशन भी उसमें रहने वाली थी, और एक यूनिक नंबर जनरेट होने वाला है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब हमने सर्वे किया, उस सर्वे में हमको पता चला था, ठीक है। तो उसमें हम एसएमएस हमने किया था कि अगर आपका
इनकम कौन सा टैक्स रहता है? इनकम टैक्स नहीं रहता, वो कौन सा टैक्स रहता है? प्रॉपर्टी टैक्स, करेक्ट। प्रॉपर्टी टास्क, सॉरी, टैक्स अगर आपने पे किया है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपने पे किया है, देन वो आपको रिवॉर्ड्स देगा, ठीक है, विद इन ड्यू डेट अगर पे किया है तो। अगर आप लेट कर रहे हो तो आपको पेनल्टी भी देगा और कंटिन्यूसली मैसेज सेंड करता रहेगा, योर प्रॉपर्टी टैक्स इज पेंडिंग, यू मे हैव अ ट्रबल, योर शॉप टैक्स, योर होम टैक्स, हाउस टैक्स, और जो भी होगा वो पेंडिंग है, ऐसी इन्फॉर्मेशन वो कंटिन्यूसली देता रहता था। तो उसके लिए हमको नागपुर जाना पड़ा था, वहाँ से एसएमएस सर्विसेज लेके, या यहाँ पे अभी तो अमरावती में मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हमारे ऐप में कैसे अनेबल करना, ये हमको सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द वे फॉर दैट। ओके, तो ये इस प्रकार से हम एक ढांचा उसका बना सकते हैं। तो इफ पॉसिबल वी विल डू वन offline meeting. Okay, if possible in the next week we'll do the one offline meeting for getting a exact, what we can say, exact way towards the developing a particular app. Okay, यही अगर बनाना है, इसी रिलेटेड अगर बनाना है, यही एक उसमें चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा अगर हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें एक फिजिकल ऑफलाइन मीटिंग की भी ज़रूरत रहेगी, जिसमें आप खुल के बता सकते हो कि ये इसमें कर सकते हैं, वो इसमें कर सकते हैं, वगैरह चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट कैन बी मेड more effective than that of the online. Okay, hope you are agree on that, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, because 2-3 अगर लोग छोड़ दे हमारे पूरे ग्रुप में, तो सबको सीखना है, इंक्लूडिंग मी, सबको सीखना है, सीखोगे तभी हमको पता चलेगा ये कैसे होता है, कैसे बनाना पड़ता है, ठीक है। सो यू मे स्टार्ट फ्रॉम फॉलोइंग द सम ऑफ द यूट्यूब चैनल, जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ तो भी टाइम पास करना है, तो कोई भी ऐसे यूट्यूब चैनल पे चले जाना ऐप डेवलपमेंट के, ठीक है, तो उसमें एक आधा तो भी 10 मिनट का 15 मिनट का एक वीडियो देख लेना, सिर्फ देख लेना, ठीक है, सिर्फ देख लेना, और उसमें जो चीज़ें बताई गई है वो अगर नोट डाउन करके रख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो वो ले लेना, बस इतना ही टास्क है आपको, बाकी कुछ भी नहीं। वो अगर कर लेते हैं तो जब ऑफलाइन मीटिंग हमारी रहेंगी तो आपकी तरफ से जो भी सजेशंस आएंगे रिगार्डिंग टू मेकिंग अ ऐप, वो हमारे सबके लिए यूजफुल रहेंगे। बस एक काम करना, सभी के सभी एक ही चैनल मत देखना, ठीक है। पिछले ग्रुप में ऐसे हुआ था कि सभी के सभी एक ही चैनल देखते थे, तो डेटा बाहर से कुछ नहीं आता था, ठीक है। वी रिक्वायर द डिफरेंट और वेराइटी ऑफ अ डेटा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट इसमें से कौन सा इजी है, इसमें से कौन सा अच्छा है, इसमें से कौन सा फ्रूटफुल है, उस वे पे हम जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐप डेवलपमेंट, इसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो लगेगा, ठीक है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड कुछ टूल्स लगेंगे, वो उसके इन्फॉर्मेशन, ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिल सकती है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट इट बिफोर गेटिंग अ ऑफलाइन मीटिंग। ऑफलाइन मीटिंग मोस्ट प्रॉब्ली हम ये जो फर्स्ट 3 डेज है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ठीक है, क्योंकि आपका इमीडिएटली कॉलेज स्टार्ट हो रहा है ना, तो शायद कल से हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, sir. तो पहले 1 2 3 दिन हम जाने देते हैं, थोड़ा सा आप रूटीन में आ जाइए। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो आज ट्रैवल करके हॉस्टल आ रहे होंगे, अमरावती आ रहे होंगे, कुछ कल आएंगे, ठीक है, तो ऐसा सब करके हम मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे या फिर फ्राइडे को एक ऑफलाइन मीटिंग रखते हैं, 20 मिनट्स 30 मिनट्स की, ठीक है। मोस्टली आईटी डिपार्टमेंट में ही रखेंगे, क्योंकि सीएससी और आईटी डिपार्टमेंट नज़दीकी है, ठीक है, तो उसमें कोई किसी को इशू नहीं रहेगा, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से आना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटिंग का टाइम मोस्टली हम रखेंगे आपके लेक्चर्स होने के बाद, ठीक है, बट आपके लेक्चर्स अब कब होते हैं, शेड्यूल कैसे, टाइम टेबल आ गया है आपके ग्रुप पे सीएस? Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट लेक्चर कब है सीएस, कितने बजे तक है सीएस का? 15. 4:15. 4:15, ओके ग्रेट। और इनका आईटी का 5:15. क्या बात कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir.
लास्ट लेक्चर कौन सा है गुरुवार को, बता सकते हो देख के? आईटी का लास्ट लेक्चर गुरुवार का? कौन सा? सर ईवीएस ईवीएस। इस ओके। सर सेक्शन बी गुरुवार लैब को इज देयर। 2:15 तक है। अच्छा, एक का लैब है, एक का ईवीएस का है। ओके यस सर। यस सर। ओके ओके। तो चलो ठीक है, हम एक ट्राई करते हैं, 5 बजे रखते हैं, सो दैट आप थोड़ा सा परमिशन लेके 5 बजे निकल जाओ फिर। और जिनका 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, 3:15 तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसके पहले ही आके फिर मिल लेना। तो बट एट अ सेम टाइम सभी का नहीं पॉसिबल होगा, है ना? कोई बात नहीं। जिनका पॉसिबल होता है वो 3 बजे, 3 बजे नहीं, 3:15, 3:30 के आसपास आप आ जाइए, थोड़े से फ्रेश वगैरह हो गए रहने, रिफ्रेशमेंट वगैरह करके। तो वो सर जो लेक्चर्स के पहले रख सकते क्या? 10:30 के पहले, सभी लेक्चर्स के यस सर, सब के पहले 10:30 के पहले मॉर्निंग 10 AM लाइक 10:30 के पहले। डिपार्टमेंट यार ओपन नहीं होते ना, वही तो दिक्कत है, फिर बाहर बैठना पड़ेगा। ठीक है, कैंटीन में बैठेंगे, चलेगा? तो एक काम कर सकते हैं फिर, हम वेनसडे को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो इतना वेट करने से अच्छा 2 दिन सफिशिएंट है ना आपके लिए कि क्या ढूंढना है। मैंने जो बताया वो सबको समझ में आ गया ना कि क्या ढूंढना क्या है? यस सर। जस्ट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो यूट्यूब पे जाके हमको जस्ट देखना है खाली, और कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने जो अगर ऐसे लगते हैं, ठीक है? सो वी विल मीट एट 9:45, ठीक है? 9:45 अगर बोले तो 10 बजे तक सभी आ जाएंगे, ठीक है? 9:45 को हम मिलते हैं कैंटीन में, और फिर वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? किसी का कुछ और है शेड्यूल वेनसडे मॉर्निंग को, पॉसिबल नहीं है वगैरह, कुछ ऐसा है? एनीवन? एनीवन? सर मेरी ट्यूशन रहती है ओके ओके। और किसी का? 10 बजे तक। और किसी का? एनीवन? आपका आपका किसकी कौन सी ट्यूशन रहती है आपकी? C++ की बैच। अच्छा ओके नो प्रॉब्लम। तो बाकी आ जाइए, अगर समझो आप 10 के बाद भी अगर पॉसिबल, क्यों फिर आप हॉस्टल पे ही रहते हैं क्या? नो सर, घर पे। अच्छा, फिर डायरेक्ट ट्यूशन से कॉलेज या फिर? हाँ, अच्छा डायरेक्ट। अच्छा ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो आप एक 5-10 मिनट के बाद भी आ गए तो बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको बता देंगे कि क्या क्या डिस्कशन हुआ, सो यू कैन ओके ऑल्सो सर। कंट्रीब्यूट, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो ये एक टाइमिंग अच्छा है, सर्वेश ने बताया, क्योंकि आखिरी में ऐसा हो जाएगा कि सीएससी वाले जल्दी फ्री हो जाएंगे, आईटी वाले फ्री नहीं होंगे, तो उनको वेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि पहले हम डिस्कशन कर लेते थोड़ा सा, तो एक 10-15 मिनट 20 मिनट का भी डिस्कशन हो गया तो भी ठीक है, एटलीस्ट आइडिया आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे। उसके बारे में और चीज़ें डिटेल में देखेंगे, ठीक है? मोस्टली संडेज को एक टाइमिंग दोपहर का जो रहता है थोड़ा सा हम फिक्स कर लेंगे, उस केस में हम मीटिंग करेंगे, जो भी एक्टिविटी की है, जो भी प्रोग्रेस किया है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और और एक चीज़, जो भी आप नई चीज़ें सीखते हो ना वो बताते जाइए सामने वाले को, ठीक है? इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स और रिमेंबर माय वर्ड्स। आप जितना कुछ देखते हो, जितनी कुछ चीज़ें पढ़ते हो, जितना कुछ भी ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड देखोगे करोगे, वो सामने वाले को बताओ, समझाओ, एक्सप्लेन करो, उससे आपको फ़ायदा होगा। उसको तो समझेगा ही समझेगा, वो अलग बात है, बट डबल फ़ायदा आपको होगा, ठीक है? वो एक मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डायलॉग है सर्किट का, ज्ञान बांटना चाहिए, अपने पास रख के क्या फ़ायदा, खराब हो जाता है, वो सड़ जाता है, वो ऐसा एक डायलॉग है, ठीक है? सो वो डायलॉग छोड़ दीजिए, बट आप जैसे एक दूसरे को बताओगे या सबको बताओगे, इट्स रियली रियली गुड। एटलीस्ट वो जब सामने वाला बताता है हमको भी लगता है यार मेरे पास भी कुछ बताने के लिए रहना चाहिए, तो मैंने भी कुछ ढूंढना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, राइट?
So that activity we will start. Okay, so we will meet on Wednesday 9:30, right? सर 9:45. सॉरी 15 मिनट और ये हो गया, प्रीपोन हो गया. 9:45 कैंटीन में. ओके Okay, sir. Okay then, thank you. Have a nice day. Bye bye.